السلام علیکم. آج میں علی گڑھ انٹرپرائزز میں ماجد صاحب کے آفس میں موجود ہوں. بہت ہی انٹرسٹنگ شخصیت ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور بہت شاعری اور بہت اچھی نظمیں کہتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت سے حوالے ہیں ان کے. تو ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. ماجد صاحب کیسے ہیں؟ جی شکریہ. اچھا, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا بہت ایک زمانے سے تعلق ہے, اسکول نیوز لیٹرز کی پرنٹنگ ہو, بروشرز ہوں, کچھ بکس ہوں, کچھ بھی پرنٹنگ پبلشنگ, علی گڑھ کا آپ کا بہت سے اسکولوں سے رابطہ ہے, بہت سے اسکول آپ کو جانتے ہیں, بہت سے وہاں کی جو ہیڈز آف اسکولس ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ آپ کو جانتے ہیں. تو یہ جو آپ کا نام ہے, ساری دنیا آپ کو ماجد صاحب کہتی ہے, تو ایکچولی جو لکھا ہوا ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ڈبلیو اقبال ماجد, تو یہ ماجد کہاں سے ہے اور یہ ڈبلیو اقبال یہ کیا؟ یہ بچپن سے ہے جی. میرا ایکچوئل نام تو وحید اقبال تھا, ہے بھی, مگر شاید 5-7 سال کا ہوں گا میں تو میری والدہ کو کسی بزرگ نے بتایا کہ اس بچے کا نام چینج کر دو. تو پھر انہوں نے ظاہر ہے انہیں سے پوچھا ہوگا کہ آپ ہی بتائیں کیا رکھیں, تو انہوں نے میرا نام ماجد تجویز کیا. تو وہ پھر چونکہ اسکول میں وحید اقبال چلتا رہا, گھر میں ماجد چلتا رہا. یعنی ماجد ویسے ایکچوئل نام ڈاکومنٹس ساری دنیا آپ کو ماجد کے نام سے جانتی ہے. جی جانتی ہے. تو پھر جب میں بزنس میں آیا, اگر میں کوئی جاب کرتا تو پھر ڈاکومنٹس کا نام اسٹیبلش ہوتا. میں بزنس میں آیا تو میرا گھر کا نام اسٹیبلش ہوا. مگر یہ نام تب تو چلتا رہا, اور میں بھی کنفیوژن نہیں چاہتا تھا اپنے نام میں. میں وحید اقبال لکھنے کے بجائے ڈبلیو اقبال ماجد لکھتا رہا تاکہ مجھے ایک نام سے لوگ پہچانے یا بلائیں, 2-4 ناموں سے نام لائیں. پھر جب پوئٹری کا سلسلہ شروع ہوا تو وہی نام میرے بچپن کا تخلص آ گیا. ہاں وہی میں نے دیکھا کہ ویب سائٹ پہ آپ نے اس کو, ہاں جی بالکل, آپ نے اس کو پریفر کیا کیونکہ سب لوگ آپ کو. جی بالکل, بلکہ پریفر کیا کیا جی, مجھے تو بنا بنایا ملا. صحیح. اچھا, تو یہ نام کا. اچھا مجھے بتائیں کہ اتنا عرصہ آپ نے, بہت سارے آپ کے بزنس ہیں, مطلب آپ کو ہم علی گڑھ فرنیچرز کا ہمیں پتہ ہے, اسکولوں میں آپ نے وہ سپلائی کیا, ہمیں پبلشنگ کا پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ علی گڑھ کی یونیفارمز بہت ایک زمانے میں آپ کا وہ بہت سارا سلسلہ رہا, بہت سے آپ کی ٹریننگ کا سلسلہ رہا. تو اتنے سارے کام اور یہ آئیڈیاز, اور یہ کیسے آپ نے سوچا؟ نہیں, مجھے کوئی آئیڈیاز نہیں آیا, نہ مجھے کسی کام کا آئیڈیا آیا, نہ میں نے کوئی کام خود سے پیسوں کے لیے کرنا چاہا. یہ کام تو میں آپ کو پرنٹنگ کا ایک سادہ سا بتاتا ہوں کہ وہ کیسے شروع ہوا. میرے ایک دوست تھے خان صاحب, وہ ایک بہت بڑے اسکول میں پرنسپل تھے, انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے, اور ایک خوش شخصیت تھے. جب جائیں چائے پانی ہنسی خوشی. تو ایک دن میں گیا تو یوں خاموش سے بیٹھے ہوئے, تو میں نے پوچھا خان صاحب خیریت ہے آج؟ تو خاموش بیٹھے ہوئے اداس سے. تو کہنے لگے کہ یہ مجھے بتائیں پہلے کہ آپ کا کوئی پرنٹر واقف ہے؟ اچھا صحیح. تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے کوئی ڈھونڈ کے دے مجھے, ہمارا نیوز لیٹر پرنٹ ہونا ہے. تو وہ تو ہمارے ساتھ 2-3 دن رہ گئے, تو ہمیں کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا. تو میں نے کہا اچھا جی میں ڈھونڈ کے دوں گا آپ کو. تب تک آپ کام نہیں کرتے؟ تب تک مجھے پرنٹنگ کا نہیں پتا تھا. اچھا, میں پرنٹنگ کو کچھ نہیں جانتا تھا. صحیح. تو مجھے چائے منگوائی, چائے پینے کے بعد میں اٹھنے لگا, تو میں کہا خان صاحب مجھے بتائیں کیا پرنٹ کرنا. تو انہوں نے ایک کاغذ فولڈ ہوا ہوا 4 پیجز نکالے, تو کہنے لگے یہ ہے جی, یہ ایک پرنٹر کو ہم نے دیا تھا, تو وہ ڈرافٹ اس کا دے گیا, اس کے بعد آیا ہی نہیں, اور اب وہ ہمارا فون بھی نہیں سن رہا. تو میں نے کہا خان صاحب اس کی مجھے کاپی کرا دیں. وہ مجھے فوٹو کاپی کرا دی. اب میں نے اس سے یہ خان صاحب کی محبت میں ڈیفینس میں ایک شاپ تھی, ایک گلبرگ میں تھی, دونوں ملازمین پہ چھوڑی, اور مجھے یہ پتا تھا کہ رائل پارک میں پرنٹنگ ہوتی ہے. تو وہاں میں چلا گیا, ایک پریس میں گیا, ان سے کہا جی یہ پرنٹ کرنا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بیٹا آپ دے جاؤ. تو میں ہوں گا اراؤنڈ 26-27 کا, یا اس طرح عمر تھی میری. اور انہوں نے کہا جی آپ دے جاؤ, اور 3 روز کے بعد ڈیزائن دے جانا. تو میں کہا نہیں جی نہیں, مجھے تو آج ہی ڈیزائن چاہیے. بیٹا یہ ڈیزائن ہاؤس جائے گا, وہاں ڈیزائن ہوگا, وہاں سے واپس آئے گا, پھر میں آپ کو دوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈیزائن ہاؤس آپ کا اپنا ہے یا باہر سے کرواتے ہیں؟ کہتے نہیں ہم باہر سے کرواتے ہیں. تو میں کہا مجھے پتہ بتا دیں. تو بڑے اچھے تھے وہ, بڑے سویٹ سے, بڑی عمر کے, اپنی پریس سے باہر نکلے اور کہنے لگے وہ 3را ٹرانسفارمر
वहाँ पता क्या नाम उन्होंने बताया से नईम साहब, कुमार नईम साहब का ऑफिस है, तो उन्हें जाके आप उनके पास चले जाओ। तो मैं कहा जी आपका नाम ले लूँ? हाँ हाँ बेटा ले लेना। मैं उनके पास चला गया, एक कमरा था, 2-3 कंप्यूटर पड़े हुए थे। तो मैंने सलाम किया, उनका रेफरेंस दिया, तो मैं कहा जी ये डिज़ाइन करना। वही 3 दिन मैं कहा नहीं जी नहीं, आज ही चाहिए अभी। तो मेरी तरफ उन्होंने यूं करके देखा, तो पता ही कितने पैसे मांगे से 500, 1000 वट एवर, कहने लगे 1000 रुपये होंगे। तो मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने हाथ अपनी पॉकेट में डाला और जो उन्होंने मांगा था वो पैसे निकाल के रख दिए। मंसूर इधर आओ, इधर आओ, ये इनका काम करो। तो मैंने कहा जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनके साथ बैठ जाऊँ? कहते हाँ बैठ जाओ। अब वो उसने टाइप करना शुरू कर दिया, मैंने देखना शुरू कर दिया, मंसूर ये गलती कर दो, ये कर दो, जो मुझे तब आता था। तो मैं साथ साथ करेक्शन लगाता गया। वो कुछ देर के बाद उन्होंने एक जब पेज कर लिया तो मैं कहा इसका प्रिंट मुझे दे दो। वो वही बैठ के मैंने उसकी प्रूफ लिख शुरू कर दी। अब घंटा लग गया होगा, 1.5 घंटा, डिजाइन बन गया। तो मैं वो डिजाइन पकड़ा और आ गया खान साहब के पास। तो मैं कहा खान साहब ये देखें ये डिजाइन। खान साहब तो खुश हो गए, मुझे कहने लगे हाँ भाई साहब ये देखें ये गलती है, ये रह गई, ये लगा दे, ये तो हमारी है, ये लगा दे। तो मैंने वो कहा कि ठीक है ये गलतियां लगा के अब कल मैं दोबारा आपके पास लेके आऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप इसे प्रिंट कर दें, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं फिर डिजाइन हाउस चला गया, वो करेक्शंस रिमूव करवाई, वहां से आके तो फिर मैं ले आया उनके पास प्रेस में। तो मैंने कहा जी ये डिजाइन हो गया, आप छापे इसको, बेटा आप इसका प्रोसेस होगा। तो मैं कहा मुझे पता बता। तो उन्होंने मुझे फिर बाहर आए, कहने के पहले तीसरे ट्रांसफार्मर गए थे, अब दूसरा ट्रांसफार्मर और ऊपर फ्रांस ऑफिस। मैं वहां चला गया तो मुझे पूछने लगे कि नेगेटिव पॉजिटिव बनाने हैं या पॉजिटिव बनाने हैं। तो मैं कहीं मुझे फर्क बताए कि ये क्या होता है। हाँ तो कहने के नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेंसिव है और बहुत क्वालिटी आला आती है, और पॉजिटिव जो है वो चीपर। मैं कह दूँ नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, क्वालिटी का आप शुरू से कॉन्शियस रहे हैं। देखें मैं तो किसी की मोहब्बत में काम कर रहा था, मैं तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, ये जो सारा आपका प्रिंटिंग का पब्लिशिंग का सफर है ये बेसिकली अपने एक दोस्त की मोहब्बत में आपने शुरू किया। ये बड़ी बात है माजिद साहब कि ये इसकी जो बुनियाद है, जो सीड है ये आपके सारे इतने काम का, मेरा ख्याल है यही मोहब्बतें जो हैं वही आपकी सक्सेस जो हमें नजर आती है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस सारी चीजें। तो ये बहुत इसके पीछे ये आपकी गुडविल और क्वालिटी कॉन्शियस होना यही बस ये अल्लाह ताला की तरफ से है जी। और मैं आपको बताऊं जी एक बात, मुझे अल्लाह ताला ने लोग भी बहुत शानदार दिए, इतने शानदार लोग। तो वो उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव बना दिए। तो फिर मुझे पूछने लगे कि प्लेट कौन सी लगाऊं? तो मैं कहा जी बेस्ट कौन सी? कहते फ्यूजी की। फ्यूजी लगाए। वो उन्होंने मुझे प्लेट्स लगा दी, वो मैंने ली और फिर प्रेस पे आ गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि पेपर कौन सा यूज करना है और कितना चाहिए, वो भी उन्हीं साहब ने मुझे गाइड किया। तो मुझे कह रहे पेपर कौन सा? मैं कही सबसे आला। तो उनका जी मैट पेपर। मैं कहा जो सबसे आला होता है। वो उन्होंने कैलकुलेट करके मुझे दिया, मैं पेपर लेके आया और उन्होंने वो प्रिंट कर दिया। प्रिंट किया तो अब उसे फोल्ड करने का था, फिर उन्होंने मुझे एक बाइंडर बता दिया, उसे फोल्ड करवाया। अपनी शॉप पे आके मैंने उसको रैप किया, पैक किया, बनाया, संवारा, और सुबह सुबह 8:30-9 के करीब मैं लेके खान साहब के पास चला गया। खान साहब तो इतने खुश हो गए, और फिर उन्हें बड़ी अच्छी सी चाय मंगवाई। तो मैंने उन्हें कहा कि एक महीने के बाद निकलता था उनका न्यूज़लेटर। तो मैंने कहा खान साहब आप पूरा महीना आपके पास है, ये तो काम मैंने आपका कर दिया है, तो अब नेक्स्ट आप कोई प्रोफेशनल बंदा ढूंढ लीजिएगा। तो मुझे कहने लगे कि अब फिक्र न करें, मैंने बंदा मिल गया मुझे, आप अब थोड़ा सा तो मुझे समझ आ गया, तो मगर मैं खामोश था। तो मुझे कहने लगे कि पूछना नहीं कौन मिला है। तो मैंने कहा जी बताएं। कहते आप ही मिल गए। तो मैं कहता था मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक रात में आपके लिए काम सीखा, मुझे नहीं आता था, तो ये मेरा काम है। तो आप कोई प्रोफेशनल बंदा देखें जो आपका काम। मुझे कहने लगे किस प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं? जो मेरा फोन नहीं सुन रहा था, जो मुझे प्रूफ दे के दोबारा उसने पूछा नहीं,
اور آپ اپنے آپ کو نان پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں کام سیکھا اور اتنا شاندار کر دیا. آپ کی باتوں سے نا ہمیں ایک پروفیشنل پرسن اور ایک نان پروفیشنل پرسن اس کے بیہیویئر کی بالکل ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ آپ کا کام نہیں تھا مگر آپ نے پھر اس پہ پروفیشنل طریقے سے کام کیا اور بندہ جس کا پروفیشن تھا اس وقت اس نے ان کا فون کا جواب نہیں دے رہا اور وہ بالکل ایک میں تو یہی کہوں گا جی آپ کا اس سے نظر ہے یہ آپ اور کے پیچھے یہ جو آپ کی سوچ رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا آپ بہت سالوں سے ظاہر ہے آپ کا کام بھی دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے حوالے سے پرنٹنگ کے حوالے سے آپ سے کام بھی پڑتا رہا ہے تو جس طرح سے آپ نے کیا اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ بہت ساری چیزیں شامل پھر اس کے بعد ایک سب سے اچھی بات جو انہوں نے کی اب نیکسٹ جو نیوزلیٹر آیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس پر اپنا نام لکھو اچھا علی گڑھ اور 7 فون نمبر. تو ایسے لوگ ملے جو پروموٹ کرنا چاہتے تھے جو دیکھ کے خوش ہوتے تھے جو ساتھ بلانا چاہتے تھے. تو پھر اس کے بعد یہ پرنٹنگ کا سلسلہ چل پڑا اور پھر اتنا زیادہ ہوا کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی الگ بن گیا. اور جب وہ نیوز لیٹر نام لکھے ہوا باقی اسکولوں میں گیا تو کئی اسکولوں سے مجھے کال آ گئی کہ بھائی صاحب یہ آپ ہمارا کام نہیں کرتے صرف انہیں کا کرتے ہیں. میں اسکولوں کے نام نہیں لوں گی مطلب اسکول سے میرا بھی ایک چین سے تعلق ہے تو ہم لوگ خود جب کہ آپ کے آفس میں جاتے رہے کہ جی ہمارا نیوز لیٹر پرنٹ کر دیں تو اور بہت دوسرے اسکولوں کی ہیڈز بھی بیٹھی ہوتی تھیں اور ان کا بھی کام چل رہا تھا اور آپ کی ساری ٹیم جو ہے سب کو بہت اچھا لک آفٹر کر رہی تھی. والد صاحب میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی جب ہم آپ کے آفس میں آتے تھے یا پرنٹنگ کے لیے بیٹھتے تھے تو جتنا اچھا ایک سپورٹنگ انوائرمنٹ پیسفل انوائرمنٹ ایک ہمیں کہہ لیں کہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ اتنا اچھا ملتا تھا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اور بہت سے لوگ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے ایک انوائرمنٹ دیا اس وجہ سے آپ کا کام جو ہے وہ ان کو اچھا لگا کوالٹی اس میں نظر آئی اور آگے سے آگے بڑھتا رہا. اچھا یہ یونیفارم والا آئیڈیا وہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں. یہ میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ میں نے ساری عمر کسی بیگانے کا کام نہیں کیا اپنوں کا کام کیا. یہ آپ کی سوچ اپنوں کا کام کیا بہت. تو جب کسی ایسے انسان کے لیے انسان سوچتا ہے جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو پھر انوائرمنٹ کیا اس کے لیے تو آنکھیں بچھی ہوتی ہیں دل ان کے لیے ہوتا ہے سب کچھ. آپ کو یہ تعلیم سے یہ جو اور سارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان سے بہت آپ کا کہنے کہ ایک تعلق بنا رہا آپ کا آپ کی فیملی کا یا نہیں ایک فیملی بنے رہے ہم لوگ. ہم لوگ ایک فیملی بنے رہے. صحیح بہت اچھی بات ہے. ایک فیملی بنے رہے تو مگر یہ جیسے آپ کے اور بھی باقی بہت سارے کام ہیں تو یہ اسی طرح کسی کو ضرورت پڑ گئی یا کسی نے کہہ دیا. میں آپ کو فرنیچر کی بات بتا دوں. جی میرے ایک دوست نام بھی لینا چاہیے ڈاکٹر شوکت علی حیات کام سائٹس کے ڈائریکٹر تھے. ایک دن میرے آفس آئے تو ایک برانڈ نیو ٹیبل سامنے پڑی ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگے بھائی صاحب یہ ٹیبل کتنے کی خریدی آپ نے؟ تو میں نے انہیں کہا جی 15,000 روپے کی کہتے تھے تو 14,000 کے لحاظ میں ہوتی ہے. کہاں سے خریدی ہے؟ میں نے نام بھی بتا دیا کمپنی کا. تو کہنے لگے کہ بھائی صاحب ہم لوگ بھی فرنیچر لینا چاہتے ہیں مگر یہ مہنگی ہے. تو میں نے کہا جی فرنیچر لینا چاہتے تو آئے نیچے والے آفس میں انہیں لے آیا تو وہاں 2-3 اور ٹیبلز اسی طرح کی پڑی ہوئی تھی جو میں نے اس ٹیبل کی طرف دیکھ کے بنوائی تھی. تو میں نے کہا جی یہ میں نے اسی کو دیکھ کے بنوایا اور یہ 6,000 روپے میں کاسٹ کی ہے مجھے. کوالٹی میں اس سے ذرا سی کم ہے مگر اسی کے اوپر 500,000 اور لگائیں تو اس سے بہتر ہو جائے گی. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی صاحب یہ پتہ مجھے بنائے جس نے یہ بنائی ہے. تو میں کہی ڈاکٹر صاحب وہ اس سے آپ کا کام نہیں کرنا. تو کہتے کیوں جی؟ میں کہا دیکھیں وہ ایک مزدور اس کو شیٹوں کے پیسے ملتے ہیں. آپ کتنی ریکوائرمنٹس ہیں آپ جی ایس ٹی رجسٹرڈ مانگتے ہیں کمپنی مانگتے ہیں ٹیکس رجسٹرڈ مانگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ہیں تو بیچارہ کہاں آپ کو بتا کے دے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی اور ڈھونڈتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو کچھ دیر میں چائے پیتے پیتے کہنے لگے کہ بھائی صاحب سب کچھ ہے تو آپ ہی مجھے بنوا دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بنوا دوں گا. تو مجھے کہنے لگے کل کسی کو بھیجے میرے آفس.
तो मैं कहते जी डॉक्टर साहब मैं खुद आऊँगा। वो मैं अगले दिन चला गया उनके पास गया, तो उन्होंने 7 डिपार्टमेंट्स थे उस वक्त कॉमसैट्स के, तो 7 के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुलाया। उनमें एक डॉक्टर अशरफ चूताई थे। वो क्या किसी प्रोफेशनल को पता हो इसके बारे में फर्नीचर के, जो उन्हें पता था, क्योंकि उन्हें तो पूरी की पूरी थ्योरी हर चीज का पता था। अब उन्होंने मुझे जो ऑर्डर किए वो अपने ऑफिस के किए और विजिटर्स ऑफिस के किए, जो सबसे आला फर्नीचर होता है। यानी वो आपका पहला काम था फर्नीचर के? उस वक्त मुझे ये पता था कि इस किस्म की चीज को टेबल कहते हैं या इसको चेयर कहते हैं, मगर ये बेसिकली है क्या मुझे कुछ नहीं पता था। और उस मीटिंग में मेरा दिल डरता रहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना टेक्निकल कर ले, और पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बताया क्या नहीं बताया, और मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब ने क्या बताया था। उन्होंने कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, बस कैटलॉग्स पकड़ी ये बन जाएगा, और मैं भी कॉमन सेंस से जो उनके जवाब थे वो देता रहा। तो उस एक मीटिंग में जो मुझे फर्नीचर का ऑर्डर मिला वो मैंने 13 ट्रकों में भेजा। 13 ट्रक। और वो मैं ऑर्डर तो ले आया। हाँ। अब बिजनेस तो आता है और कैलकुलेशन भी कर ली, एक एक चीज कैलकुलेट की, रेट निकाले और लिहाज में मुनासिब सा एक मार्जिन रख के तो कोट कर दिया और कोटेशन अप्रूव हो गई, रेट भी रिजनेबल थे। अब क्वेश्चन था कि ये बनवाई कैसे, मेरे पास तो कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, फर्नीचर का पता ही नहीं था। तो मुझे एक साहब मिल गए जो बहुत शानदार काम करते थे। मैंने सबसे पहले तो उनसे सैंपल बनवाए। उन सैंपल्स की प्राइस ज्यादा थी, शायद मेरे कोट किए हुए से भी कुछ ऊपर, मगर मैं सैंपल इसलिए बना लिए कि थोड़े से पैसे ज्यादा लग गए, क्वालिटी एक तो डिसाइड हो गई, और वो सैंपल जब मैंने भेजे तो वो तो आशश कर उठे। अब मैंने वो अपने ऑफिस पे रखे और लाहौर के इतने फर्नीचर वालों को बुलाया, जिसको काम आता था वो उससे भी ज्यादा प्राइस मांगता था, और जिसको नहीं आता था वो मेरे फायदे का नहीं था। मुश्किल में पड़ गई होंगे कि मैंने क्या प्राइस कोट। नहीं जी, मुझे तो रात नींद आती रही और मैं बहुत फिक्र में रहा। 15-20 दिन तो इसी में गुजर गए। अब टाइम भी कम हो रहा था, तो एक रात कोई 2:30-3 बजे तक मैं जागता रहा इसी फिक्र में कि छोटा मोटा हो तो आदमी सोच कर ले, अब इतना बड़ा ऑर्डर है। मगर 2:30-3 बजे एक ख्याल मेरे दिल में आया, तो मैं तो बिल्कुल पीसफुली सो गया। सुबह में उठा, मसला हल हो गया। सुबह में उठा तो वो समीना हमारी ऑपरेटर थी, उसे मैंने कहा हिसाब का नंबर लाओ, ये वही साहब थे, वो सैंपल बनाए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आप निकल गए घर से या अभी फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं? तो मुझे कह रहे बस मैं निकलने लगा हूँ। तो मैं कहा मेरी तरफ से होते चाहिए। वो आए तो मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया कि जी 2 रुपए की चीज कॉस्ट कर रही है, आप 6 किस चीज के मांग रहे हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं किया। सिर्फ मैंने 2 बातें पूछी कि ये मुझे बताइए कि ये ऑर्डर है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, आपको पैसे कितने एडवांस चाहिए और टाइम कितना। तो उन्होंने मुझे कहा जी 50% आप एडवांस दे दें, और टाइम उन्होंने जो हमारा डिसाइडेड था उसके लगभग ही मांगा। तो मैंने उन्हें चेक बना के दिया और ये कहा कि ऐसा क्वालिटी में ऊपर नीचे कीजिए, और उन्होंने भी क्वालिटी में मुझे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं किया, या टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि जिसके परेशानी हो या कुछ ऐसा हो। तो अब उसमें सिर्फ मैंने ये सोचा कि एक जगह पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है डॉक्टर साहब का, इतनी मेरी गुडविल है, पता नहीं मुझे वो क्या समझ रहे हैं, और मैं क्यों इसको पैसे बचा के अपने तो सब कुछ का जो है और ज़ाया कर दूँ। तो इस दौरान एक और बहुत बड़ी चेंज स्कूल से एक उनके डायरेक्टर मेरे पास बैठे हुए थे। जब मैं बात कर रहा था फोन पे तो कहने लगे वैसे भी क्या आप बातें कर रहे हैं फर्नीचर की, मैं क्या आपको बताया नहीं था तो फर्नीचर का ऑर्डर है, तो कहने लगे हमें भी बता दिया करें। तो मैं कह आपको पता तो है कि मुझे दिया था, तो कहते थे भाई साहब बता देंगे। मैं कह जी मुझे स्कूल का तो पता ही नहीं है। कहने लगे भाई साहब हम आपको सैंपल भेज देंगे, हम टीचर्स भेज देंगे, अब तो ये बर्ड्स इक्विपमेंट की उन्होंने बात की, ये तो आप कराची से मंगवाते हैं, तो वो टूट फूट के आता है और उनके नखरे अलग है।
तो फिर मैंने उनसे हामी भर ली, मगर उस वक्त मैं ये समझा कि अगर मुझे ये काम करना है तो अपनी फैक्ट्री बना दी। तो उन्हीं दिनों इत्तेफाक से एक डीलर से बात की, मुझे एक जगह भी मिल गई, और एक और डायरेक्टर थी बहुत बड़ी चेन स्कूल में, उनके हस्बैंड ने मुझे एक सुपरवाइजर दे दिया कि भाई साहब मेरे पास है एक बड़ा आला आदमी। काम शुरू हो गया। अब काम शुरू हुआ तो डीको पेट में हम लोग बनाते थे, तो जो डीको पेट मैं बनाना चाहता था वो बन ही नहीं रहा था। सुबह दोपहर शाम ये बना दो, ये डाल दो, ये खत्म करो, दोबारा बनाओ, नहीं ये फिनिश नहीं चाहिए, ये फिनिश चाहिए। डीको पेट कार का पेट है, कार की फिनिश चाहिए, मर्सिडीज की फिनिश चाहिए। अब वो लड़के लगे हुए और कर रहे, करते 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 फिर अब जिससे मैं गाड़ी अपनी पेट करवाता था वो सिर्फ मेरी गाड़ी इस किस्म की करता, बाकी बड़ी आला मर्सिडीज टाइप करता था। उसकी वर्कशॉप खत्म हो गई तो मैंने उसे कहा कि जितनी देर तुम्हारी वर्कशॉप बनती है तो मेरी वर्कशॉप में आ जाओ, मेरे लड़कों को सिखा दो। उसको कुछ मैंने पे कर दिया तो उसने फिर पेट सिखाया। उसमें दिक्कत ये आई कि हम लोग वुड पे करते थे, वो टिन का एक्सपर्ट था, तो करते करते एक क्वालिटी ऐसी बन गई जो एक्सेप्टेबल और बहुत आला, जो शानदार, जिसे लोगों ने कहा। सही। तो वो मैंने एक स्कूल में दिखाया, फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो उनकी रीजनल डायरेक्टर ने कहा आपने रीजनल मैनेजर को बुला के कि ये हमारी जिस ब्रांच में नहीं है वहाँ इनसे लेकर सप्लाई कर दे और जिस पे है उसमें रिप्लेस कर दे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये मजेदार सिलसिला रहा। हाजी साहब, आपकी बातों से मुझे लगता है कि मतलब आपने बहुत रिस्क लिए हैं लाइफ में। क्या रिस्क उठाने चाहिए? क्योंकि देखिए आपने ऑर्डर ले लिया, बाद में आपने फैक्ट्री बनाई, आपको क्या लगता है? मैंने रिस्क लिया। सही, कोई रिस्क नहीं। No, it was not calculated. ना ये रिस्क था, ना ये कैलकुलेशन थी, ये उनकी मोहब्बत थी, और फिर मुझे उनके लिए काम करना था। काम आपका सैंपल था, आपने काम किया, वो अप्रूव हुआ। देखिए जो अप्रूवल है ना वो अगला बंदा नहीं करता। अप्रूवल तो इंसान की खुद से होती है। अगर कोई चीज आपको खुद को अच्छी लगती है वो तो अप्रूव्ड है। यानी ये म्यार आपका रहा कि चीज जो है जब आप सेटिस्फाइड हो खुद से, काम से, इतना अच्छा हो कि फिर उसको कोई ना कर ही नहीं सकता। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरनेशनल स्कूल की चेन है जहाँ उनकी अर्ली इयर्स की सिस्टम हेड, उन्होंने मुझे एक इंग्लैंड से बिल्डिंग ब्लॉक्स लेके आई थी, तो मुझे कहने लगी कि भाई साहब ये इसमें एक्चुअली उसके लिए लिंच शीट चाहिए था उन्हें। तो मुझे कहने लगी लिंच शीट कहाँ से मिलेगा? तो मैं कभी आपको भेज देता हूँ। तो फिर मुझे पूछने लगी कि आप ये बना सकते हैं इस तरह के? तो मैं कहा हाँ, क्यों नहीं, सैंपल दे मुझे। तो कह रही दे मैं आपको डायरेक्टर के पूछे बगैर नहीं दे सकती। तो मैं कहा चले पूछ लेते उनसे। तो मेरे साथ ही गई तो डायरेक्टर स्टडी से पूछने लगी कि अगर आप कहें तो ये सैंपल मांग रहे हैं। तो कहा कि ये पूरे का पूरा बैग पकड़ा दो इन्हें। तो मैं बैग ले आया, ला के बनाया, बहुत जो मैं बना सकता था टॉप। बनाने के बाद जब मैं लेके गया तो सबसे पहले मैं उन्हीं को दिखाया जो सिस्टम हेड थी अर्लीयर्स की। तो उन्होंने एक हाथ में इंग्लैंड वाला ब्लॉक पकड़ा, एक हाथ में मेरे वाला पकड़ा, और हंसती हुई डायरेक्टर के पास चली गई और कहने लगी ये देखिए जी इंग्लैंड वाला जाली लग रहा है और ये असली लग रहा है। वेरी गुड। तो मेरे लिए ये जो उनके वर्ड्स थे, जो एप्रिसिएशन थी, मेरे लिए यही काम ड्राइविंग फोर्स आपकी रही है, जो क्वालिटी और ये। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए जो रिस्क है, जो पैसे है, वो कभी मैंने प्रायोरिटी पर नहीं समझे, वो सेकेंडरी, वो उसके एक बाद की चीज है। और रिस्क पर जो मैं कहने लगा था, मेरा इस कदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इस कदर स्ट्रॉन्ग, कि वो नहीं है कि जिस पे नाम लिखा हुआ है वो रिस्क आपका, वो नहीं है, बल्कि आपका रिस्क वो है जो खुद आपके लिए पागल हो के आपको ढूंढ रहा है। और अगर आप दरवाजा ताला लगा के बैठे हैं तो दरवाजा तोड़ के आ रहा है। तो मैंने एक शायद हजरत अली का मुल्ला बच्चों का कॉल है, या मैंने कंफर्म नहीं किया, तो ऐसे में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो मैंने
पढ़ा कि अगर आपका रिस्क दो पहाड़ों के दरमियान है, मैं दो पहाड़ों को यूं नहीं समझ रहा हूँ, मैं यूं समझ रहा हूँ, अच्छा, इतना अंदर धंसा हुआ, ठुका हुआ उसके अंदर, और आपका है तो आपको मिलके रहेगा, और अगर आपका नहीं है और आप ही के दो होठों के दरमियान है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा जो बिलीफ है, ये मुसलमान होने की वजह से तो है ही, मगर इतना स्ट्रॉन्ग मेरे एक्सपीरियंसेस की वजह से है। मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हासनपुर में हमारी एक फ्रेंचाइज है हमारे स्कूल की, उन लोगों के उनके बेटे का वलीमा था तो उन्होंने हमें वलीमे पे बनाया। अब 5.5 घंटे की ड्राइव पे हम लोग वहाँ गए, तो ज़ाहिर वलीमे पे जा रहे थे तो रास्ते में तो खाना नहीं खाना था हम लोग वहाँ गए, वो शायद नील गाय का गोश्त लाया हुआ था या कुछ इस तरह से था, और उन्होंने हमें एक ऐसी टेबल पे बिठा दिया जिस पे सबसे उनके खास मेहमान थे, खाना भी वही आ गया। अब भूख भी लगी हुई थी, अब तीसरा या चौथा दवाला होगा, इतनी सी बोटी मैंने ली और लेके ज़ाहिर चिबाई, साथ रोटी का पीस तो गल गया और बोटी भी चिबाई गई, मगर उसका एक इतना सा पार्ट मेरे हलक में फंस गया, और ये उसी को अंदाजा हो सकता है उस का जिसके कभी ये अल्लाह ना करे हुआ, बड़ा पैनिक का वक्त होता है, बहुत मुझे सांस नहीं आ रही है। वो जो 2-3 लम्हे थे, 2-4 लम्हे, वो बहुत ही मुश्किल थे। तो मैं एकदम से वहां से उठ के बाहर आया तो वो पीस बाहर आ गया, तो मुझे वो कॉल याद आ गया 2 फुटों के दरमियान, मेरे तो हलक से बाहर आया था, तो मैं कैसे ना इसको बिलीव करूं, और फिर मैं पैसे के लिए क्यों काम करूं, मैं काम की क्वालिटी के लिए या किसी की मोहब्बत के लिए वो क्यों ना काम करूं। बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकती हूँ और चाहती हूँ कि बिजनेस की बात हमने की और बहुत वो सारे सिलसिले, तो शायरी के हवाले से ना बस आप कोई एक छोटी सी शायरी के हवाले से आपसे लंबी गुफ्तगू होगी और बहुत उस पर बातें हो सकती है। कुछ आप मुझे पंजाबी की कोई चीज़ अगर सुना दें। पंजाबी की फिर मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। ठीक है, जरूर जरूर, आप अपना बिल्कुल, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, मतलब जाहिर है क्योंकि आपके बहुत सारे हवाले हैं, शायरी का हवाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैंने जब शायरी आपकी पढ़ी तो पहले मैं बहुत हैरान हुई कि आपने ये सब कहाँ छुपाया हुआ था। मुझे क्योंकि हम आपसे मिलते रहे प्रिंटिंग के हवाले से, पब्लिशिंग के हवाले से, तो मुझे नहीं मालूम, मुझे पता नहीं था ये। बहुत हैरान हुई कि माजिद साहब आप इतना अच्छा लिखते थे और ये अचानक से कैसे इतना सारा डेवलप हो गया। ये मुझे खुद को नहीं पता था जी, बल्कि यूं कहना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है हार्टी कितने साल हुए हैं कि ये आपने, बस मेरा ख्याल है 5-6 साल से, इससे पहले आप नहीं लिख रहे थे। इससे पहले मेरे पास वक्त ही नहीं था, हाँ, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था, सही, और वक्त भी नहीं था। सही, जरूर इरशाद जी। ये है जी, वेड़ा पल विच उत्ते थल्ले, वेड़ा वेला 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 वेला, अच्छा, वेला पल विच, वेला पल विच उत्ते थल्ले, ना कर एवी बल्ले बल्ले, वेखी उच्ची बढ़त ना मारी, सोची जा की तेरे पल्ले, सोची जा की तेरे पल्ले, जो कुछ कीता सो ही लेना, जो कुछ कीता सो ही लेना, ना कुछ सुनना ना कुछ कहना, फुल बीजे तू ते गुलशन लेना, कंडे बीज तू पछे रहना, औखे पैडे पै जा बंदिया, खट कमा कुछ ले जा बंदिया, रहमत ओदी डुलदी फिरदी चोरी करके बह जा। वाह, बहुत ही आला बात है, और इसी बात पे हम आपको खुदा हाफिज करेंगे। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने का, और इंशाल्लाह ये बातें आपसे चलती रहेंगी। इंशाल्लाह इसकी एक और भी एपिसोड जो है ना वो जल्द रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, थैंक यू। उम्मीद है आपको मजा आया होगा माजिद साहब से गुफ्तगू का, और जैसा कि मैंने कहा इंशाल्लाह इनसे और भी बातें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।